जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, धिक्कारा धिक्कारा, धिक्कारा धिक्कारा, आरएसएस के धिक्कारा, आरएसएस के धिक्कारा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट का नारा है, पॉपुलर फ्रंट का नारा है, हर मजलूम हमारा है, हर मजलूम हमारा है। ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆದೇಶಿಸಿದ ದಿನಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಪಾಯಕರ ಒಂದು ರೈತ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಕಡಗಲಿಯನ್ನು ನೀವು ಏನು ಈ ರಾಮನವಮಿಯ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ರೋಡಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕಿವಿಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ಆದರೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಆ RSSನ ಗುಂಡಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ RSS ಬಜರಂಗ ದಳವರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್-19ನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಜಾತಿ ಭೇದ ನೋಡಲಾರದೆ ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನತೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಯೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ RSS ಬಜರಂಗ ದಳದ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿಯಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಗಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಜರುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಈ ರಾಮನವಮಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಮಸೀದಿಯ ಅದು RSSನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟಾಗಲಿ ಇಂಥ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ UAPA ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿಳಿಯರನ್ನು ತುಳಿಯದೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯವರಿದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂತೂ ಕೋರಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. RSS ಬಿಜೆಪಿಗರೇ ಯೋಚಿಸದೆ ಇಳಿಯದಿರಿ. हम लोगों को समझना है जो मध्य प्रदेश में जो इंसिडेंट हुआ रामनवमी के टाइम, वो क्या इंसिडेंट था। वहाँ पर मस्जिद के सामने जाकर ओपनली मस्जिद के मीनार पर एक केसरी कलर का भगवा झंडा लहरा रहा है, लेकिन मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रही। ये गोदी मीडिया टोटली मुसलमानों के खिलाफ बात करने के लिए इनके पास एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसके खिलाफ बात नहीं कर रही। एक दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, वहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों की दुकानों को टारगेट कर जलाया जाता है। बाजू में एक नॉन मुस्लिम का, हिंदू भाई का दुकान है, उसको नहीं जलाया जाता। तो बताने का मकसद ये है कि ये लोग अपना इनका एजेंडा पूरा करने के लिए आने
आने वाले दिनों में ये लोग ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना एजेंडा पूरा करने के लिए हर रात तक जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमारे लास्ट टाइम के हमारे स्टेट के जिम्मेदार भी एक जवाब दिए हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये हालात को नहीं रोका जाएगा तो हम लोग ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, पॉपुलर फ्रंट का हर एक कैडर ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। तो बताने का मकसद ये है भाइयों कि कहीं पर भी रामनवमी के नाम पर आज तक हम लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद होने से लेकर आज तक 70-75 साल से रामनवमी का फेस्टिवल चल रहा है, त्यौहार चल रहा है। इसी बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग जब से ये धर्म संसद हुई है, जब से ये धर्म संसद होने के बाद से ये लोगों का माइंडसेट खराब होकर ये लोग कभी आरएसएस के नाम से, कभी वीएचपी के नाम से, कभी बजरंग दल के नाम से, कभी राम सेना के नाम से, अलग अलग इदारों से, अलग अलग विंग से ये लोग आकर इनका माहौल को खराब कर रहे हैं। ये माहौल को खराब करने के बाद ये इनका फिर से कहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले गोवरकर की औलाद, आरएसएस के लोग और नाथूराम गोडसे की जैसे औलाद है, ये लोग हैं इनका दिमाग खराब कर रहे हैं। ये हिंदुत्व किसी का नहीं है, ना मुस्लिम का है, ना क्रिश्चियंस का है, ना हिंदू का है, किसी का ये हिंदुत्व नहीं है। सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने मकसद के लिए ये लोग इनका हिंदुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाइयों, मैं हिंदू भाई से भी अपील करता हूँ, ये किसी के नहीं होंगे। जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये लोग आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट तो मुसलमानों को कह रहे हैं, बाद में दलित भाइयों को कहेंगे, उसके बाद ये हिंदू भाइयों को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ये ब्राह्मणवाद, ये 2% लोग, ये लोग हमारे ऊपर हुकूमत करना चाह रहे हैं। ये हिटलर की सोच रखने वाले लोग ये हमारे ऊपर हुकूमत करना चाह रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक जिंदा है, इंशाल्लाह हम लोग है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हम लोग लीगली जो फाइट करना है वो फाइट करेंगे, संविधान के दायरे में जो फाइट करना है वो फाइट करेंगे। हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का जो प्रोटेस्ट जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से पूरे मुल्क भर में जो रखा गया है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, जो मज़लूम है उनकी आवाज़ क्या है मालूम, दिल्ली तक पहुंचना, और जो जालिम है उन्हें इंतबा देना। यानी वार्निंग दे रही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कि ये लोग सुधर जाएं। अपनी गलतियों को करते करते ये रामनवमी के वक्त ये वेल प्लान के साथ पूरे मुल्क भर में फसाद करने की जो कोशिशें जो आरएसएस और इनके जो विंग्स हैं, वीएचपी, बजरंग दल और बहुत सारे जो विंग्स हैं, ये पूरी कोशिश की है। यहाँ पर उडुपी कुंदापुर में एक औरतों की एक रैली भी निकाल कर क्या है मालूम, ये हमें डराना चाह रहे हैं। हम ना फिरौन से डरे, ना नमरूद से डरे, ना कोई भी दुनिया की कितनी भी बड़ी जालिम ताकत हो उससे डरने वाले नहीं। इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये प्रोटेस्ट के ज़रिए से तमाम मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर ये दिल्ली को क्या है ये मैसेज पहुंचाई है। और हम सारे इंडियन जो गवर्नमेंट है उससे अपील कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये नुकसानात हुए हैं इनकी नुकसान की भरपाई करना है, और जो कल्प्रिट्स हैं, जितने गुनहगार हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए ये गवर्नमेंट काम करना है। और अभी भी क्या है, हमें कानून के ऊपर भरोसा है और ये कानून का सहारा लेते हुए हम लोग अभी तक भी काम कर रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, वो स्टेट में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए वो आगे आए। वरना हम लोगों को कानूनी तौर पर हम क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या है, हम खुद वकील रख कर क्या है मालूम, इनके ख़िलाफ़ सबूत जमा कर हम खुद केस लड़ने के भी काबिल हैं। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का मीडिया मस्जिद पर जो झंडा लगाया जाता है उसको नहीं बताता, बल्कि मुसलमानों को पत्थर मारे बोल के वो न्यूज़ को सुबह से लेकर शाम तक क्या है पत्थर मारे बोल, जबकि वो साबित हो चुका है कि इन्हीं के लोग क्या है मालूम वो पत्थर मारने में शामिल थे। मैं चाहता हूँ ये इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी कमीशन बिठाकर इसका पूरी तरीके से जायज़ा लेकर कल्प्रिट्स को सज़ा दो। हमें कोई भी
कल्प्रिट होता है, मेरा भाई भी अगर कल्प्रिट है उसे भी सज़ा देंगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन एक भी गुनहगार को ऐसा छोड़ेंगे माशरे में? गुनहगारों को छोड़ने की वजह से आज जो इंडिया का जो माहौल है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है इस इंडिया को बचाने के लिए जो हो सकता है ये लोग करेंगे। मैं इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं मोहम्मद यूनुस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट मेंबर। अस्सलाम वालेकुम।